आज का कार्यक्रम फिर हम शुरू करते हैं। नमस्कार, सुप्रभात। मैं नेस्ले से भावेश गुप्ता आज उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों का इस वर्चुअल उद्घाटन में स्वागत करता हूं। आज के मुख्य अतिथि श्री राज्यवर्धन सिंह राठौर जी, चेयरमैन ऑफ स्टेट कॉर्पोरेशन श्रीमती सुमन कौर जी, मेडिकल इंचार्ज ऑफ CHC डॉक्टर शेरपुर साहब, हमारे डायरेक्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स श्री संजय खजूरिया जी, एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट कॉर्पोरेट अफेयर्स श्री हिम्मत सिंह जी, कॉर्पोरेट अफेयर्स से श्री कादम्बा जी, अजय जी और सर्व दल से दरुण जी, आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको ज्ञात है कि नेस्ले जहां एक तरफ अपने पोषक और स्वादिष्ट उत्पाद ग्राहकों को उपलब्ध कराती है, तो दूसरी तरफ अपनी कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व कर्तव्य को भी भली भांति समझते हुए समाज के लिए भी कार्य करती है। अपनी CSR कार्य प्रणाली के अंतर्गत नेस्ले 2 स्थानों पर अहम भूमिका निभाती है। पहला, सरकारी स्कूलों में बालिका टॉयलेट का प्रबंध कराना, दूसरा, जनसाधारण के लिए स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था करवाना। इसी संदर्भ में जब राठौर ने रेनवाल में स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था की इच्छा व्यक्त की, तब नेस्ले ने इस पर विचार किया और इसका प्रबंध कराया। राजस्थान में नेस्ले द्वारा 15 जगहों पर स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था करवाई गई है। अब मैं अपने डायरेक्टर कॉर्पोरेट अफेयर्स श्री संजय खजूरिया जी से प्रार्थना करूंगा कि वो कुछ शब्द कहें। Good morning, Devesh. Am I audible? Yes, sir. Okay, thank you very much. A very good morning to all of you. We are very, very privileged today to welcome here Colonel Rathore. Sir, we are very thankful. We only wish that we were together with you at this site today, but hopefully in the next inauguration, we will all be together. Also wish to welcome Mrs. Suman Kumawat, Chairman of Kishangarh Renewal, and Dr. Rajendra Sapat. Sir, I can't see you. देवेश, राठौर साहब नहीं दिख रहे हैं। Is he? Can you see me? No, sir, not yet. That's. Now we can, sir. You can see me? Okay. Yes, sir. Thank you so much. I was addressing you and I couldn't see you, so therefore I thought if not inconvenient for you. No, fair enough. Fair enough. It's a pleasure. Thank you so much. Please carry on. Yeah. So let me welcome you again, sir. Sir, as you may know that Nestle is in India for last 108 years, serving the valued consumers. We are also extremely happy that we have been able to contribute towards societal work. Our areas of work basically are under nutrition awareness program. We also provide, one second, sir. We also, sir, are very careful about our environment sustainability, providing water and sanitation facilities where required, sir. And we are also looking at rural development in a big way. Water, as all of us know, is an extremely important component of whatever we do. While many of us, we just put on the taps and we get clean drinking water, there are over 160 million people in our country who still do not have access to clean drinking water. Sir, our small contribution towards this cause started in '99 when we started putting water fountains in schools to start with. The reason was twofold, sir. One, it was creating awareness amongst students who actually then went back to their homes and started talking about clean, safe drinking water. And they, in a way, became ambassadors for safe drinking water at their homes as well. And sir, once they started talking about it, we saw that even at home, the parents and the siblings also started to look at water in a different light. The other reason, sir, was that once we started putting water fountain and making these students ambassadors, the farming community, and as you know, sir, food processing industry is basically a big consumer of agri commodities.
the farmers also started to look at water differently, whether it was conservation and preservation. So, sir, whatever societal initiative take, water plays a big role. You'll be very happy to know, sir, that even cow's milk which we buy, and we buy from 100,000 farmers in Punjab, Rajasthan, as well as in Haryana, this has roughly 83% water. We are taking that water out of that cow milk before we process it, and that's used for utilities. Sir, a lot of work also on sanitation facilities. As you know, that lot of girl students do not want to come to schools because parents think it's not safe. So we have taken this initiative of putting sanitation facilities in school. When an opportunity comes in, sir, we'll also take you through some of those initiatives. But today, the happy news is that we are here together, though virtually, in inaugurating another center, sir. And we are extremely grateful to you for taking your time off out. We know it was a very busy day for you. Thanks a lot for coming in. Very, very grateful to Saravjal, who are our partners in many of these initiatives. They have been our partner in making sure that the safe drinking water is provided to communities, and we continue to do work with them. I shouldn't at all miss thanking Dr. Rajendra and his team. Right from the time, sir, this program got conceptualized till the inauguration today, they have been with us with really solid support, and we are extremely grateful. I won't take much time, and I would request Devesh to take the program forward. Thanks a lot to all of you again, and thanks in particular to Colonel Rathore today. Thank you. अब मैं अनुरोध करता हूँ श्रीमती कुमावत से और डॉक्टर साहब से और रिबन काट कर इसका उद्घाटन करें। आप बाकी यहीं पर बैठो क्योंकि थोड़ा सा लेट है, तो बाकी आप इसके स्क्रीन पे देख सकते हैं। स्क्रीन पर आएगा। The cameras have been set up very well, I must say. Yeah, we had a dry run in the morning to ensure everything. I was really impressed with this. इसमें दिखा देंगे आप। If you want, you can keep it because I'm going to be speaking that time. Yeah, this one. आप विराजमान हो जाए। अब मैं तरुण जी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो एक बार वर्चुअली स्वच्छ पेयजल सुविधा का अवलोकन और अवगत कराएं इससे कैसे काम करती है। नमस्कार, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम तरुण शर्मा है और मैं पुराने सर्वेगल से हूँ। मैं आज आपको जो पूरा सेटअप नेस्ले से हमने इस अस्पताल में लगाया है नेस्ले के सौजन्य से, तो उसका मैं आज आपको पूरा विवरण देने जा रहा हूँ। एक बार कर्नल सर्वेगल एनेबल हेल्थ सोसाइटी और नेस्ले इंडिया की तरफ से और पूरे नगर पालिका एंड अस्पताल की तरफ से विराजमान सभी अतिथियों का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। सो आपके समक्ष आप वर्चुअली आप देख पा रहे हैं कैमरा के थ्रू पे, यहाँ पे ये जो प्यूरिफिकेशन यूनिट है ये अत्याधुनिक वाटर प्यूरिफिकेशन प्लांट है। रासायनिक एंड जैविक अशुद्धियों को वे फिल्टर करता है। इसके अतिरिक्त आप जो स्क्रीन पे ये जो सूचक देख रहे हैं इसको इलेक्ट्रॉनिक सूचक हम बोलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सूचक और इसमें लगे जितने भी सेंसर्स वो सारे ये इंश्योर करते हैं इसकी क्वालिटी, और इन सब सूचक और इसके सेंसर्स के बदौलत इसका जितना भी उत्पादन हम डेली बेसिस पे करते हैं वो सारा ऑनलाइन हमें
डेटा जो है वो उपलब्ध उसका हो जाता है। आइए अब मैं आपको बाहर चल के वाटर एटीएम जो हमारा जो जहाँ पे जो उत्पादन पानी है वो हमारे बेनिफिशियरीज तक कैसे पहुंचेगा, एटीएम से उनको पानी कैसे मिलेगा, एक बार मैं आपको वो भी वर्चुअल कैमरा के माध्यम से दिखाने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद। चलिए अब मैं आपको एटीएम की तरफ लेके चलता हूँ। ये हमारा एटीएम है, बोतल लेके आओ बोतल। ये हमारा एटीएम है जो कि सौर ऊर्जा स्वचालित मशीन है। इस एटीएम की बदौलत जो भी हमारे बेनिफिशियरीज हैं, आप इधर आ जाइए, जो भी हमारे बेनिफिशियरीज हैं उन बेनिफिशियरीज को 24 घंटे इंटू 7 दिनों तक, 7 दिनों में 24 घंटे ये अवेलेबल रहेगा। बिल्कुल बाहर के स्पेस में हमने लगाया है। और बेनिफिशियरीज को पानी लेने के लिए सिंपल यहाँ पे बटन दिया हुआ है, आप देख सकते हैं वर्चुअल कैमरा के माध्यम से। यहाँ उनको एक बार बटन प्रेस करना है। एक बार बटन प्रेस करने के बाद 300 ml पानी उनके बोतल में, जार में या जिसमें भी वो लेना चाहे उसमें लेके वो ले सकते हैं। तो ये जो पानी है आप देख सकते हैं 300 ml पानी बेनिफिशियरीज को इजीली एक बार बटन प्रेस करने पर मिल जाएगा। और इस प्रोजेक्ट की सबसे खास बात यह है कि हमारे डिस्पेंसिंग यूनिट के थ्रू 1000 से ज्यादा यहाँ के जो लोग हैं, जो हमारे बेनिफिशियरीज हैं, उनको एक दिन में 1000 से ज्यादा लोगों को हमारे वाटर एटीएम मशीन से शुद्ध पेयजल की आपूर्ति हो सकती है। धन्यवाद। तो ये मैंने आपको पूरा वर्चुअल कैमरा के माध्यम से पूरा प्रोजेक्ट का सेटअप समझाया। अब मैं निवेदन करूंगा कैमरामैन से कि वो हमें वापस स्टेज की तरफ ले चले। थैंक यू सो मच। तालियां। ये लगा देना एक बार। धन्यवाद तरुण जी इस इंफॉर्मेशन के लिए। अब मैं आज के मुख्य अतिथि श्री राजवर्धन सिंह राठौर जी के बारे में संक्षिप्त परिचय दे दूं। वैसे ये किसी परिचय के मोहताज तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपको एक बार संक्षिप्त परिचय दे दूं। इनका जन्म 29 जनवरी 1970 जैसलमेर राजस्थान में हुआ। ये निशानेबाज हैं। इन्होंने ओलंपिक खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया है और रजत पदक जीता है। इन्होंने विभिन्न प्रतियोगिताओं में करीब 25 पदक जीते हैं। ये 1990 से 2013 तक इंडियन आर्मी में कार्यरत रहे। आखिरी रैंक इनका कर्नल रहा। 2014 से इन्होंने राजनीति में प्रवेश किया। तब से इन्होंने विभिन्न कार्यालयों में का कार्यभार संभाला है, जिनमें से प्रमुख हैं इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। वर्तमान में ये जयपुर ग्रामीण से सांसद हैं। अब मैं अनुरोध करूंगा राठौर जी से कि वो अपने विचार प्रकट करें। जी आप सबको बहुत बहुत नमस्कार। मेरी आवाज सुनाई दे रही है आप सबको? सबसे पहले तो मैं खजूरिया साहब का स्वागत करता हूं। उनकी वजह से, उनकी कंपनी की वजह से आज न केवल ये कार्यक्रम हो रहा है, बल्कि आपके पेयजल की भी समस्या का समाधान हो गया है। देवेश गुप्ता जी जो कॉर्पोरेट अफेयर्स के राजस्थान के मैनेजर हैं, उन्हें धन्यवाद करता हूं। हमारी चेयरमैन सुमन कुमावत जी का मैं स्वागत करता हूं। डॉक्टर आरपी सिंह जी, आरपी जी का भी मैं, राजेंद्र जी का भी मैं स्वागत करता हूं। गौरी शंकर शर्मा जी यहाँ विराजमान है, दिखाई दे रहे हैं मुझे। सीताराम जी, बनवारी लाल कुमावत जी, राजकुमार कुमावत जी, आप सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। देखिए ये चुनौतीपूर्ण समय है। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि ऐसी परिस्थिति पूरी दुनिया में आ सकती है, लेकिन है, आ गई है। और अब हमें उसका मुकाबला भी करना है, उसका सामना भी करना है। और उसका सामना करते हुए सबकी जीवन की सुरक्षा बनाए रखे हमें आगे बढ़ना भी है। अपना जो बुनियादी जो काम है उसको आगे बढ़ाते रहना है। और उसी कारण से आज एक छोटा सा प्रोग्राम है। कम लोग वहां पे मौजूद हैं, क्योंकि जब तक दवाई नहीं आएगी, जब तक यही वैक्सीन है कि हम मास्क को लगा के रखें। माफ कीजिए मैं बात को दोहरा रहा हूं, लेकिन जरूरी है कि हम मास्क को लगा के रखें और आपस की दूरी बना के रखें, हाथ वाथ की सफाई रखें। यही दवाई है जब तक कोई वैक्सीन नहीं आती। और इसी कारण से
आज मैं भी यहाँ से इतनी दूर से आपसे बातचीत कर रहा हूँ, लेकिन टेक्नोलॉजी की बदौलत कम से कम हम मुलाकात कर पा रहे हैं और आपसे एक दूसरे से बात कर पा रहे हैं। पानी की जो समस्या है राजस्थान में तो सबसे ज्यादा है, और जब मैं देखता हूँ कि बेटियां, बहुएं, माँ बहनें दूर दूर तक जाती हैं पानी को लाने के लिए, तो कष्ट भी होता है। जनप्रतिनिधि होने के नाते उसका समाधान करा जाए, ये हमारा सबका दायित्व हो जाता है। आप भी जनप्रतिनिधि हैं, मैं भी हूं, कहीं ना कहीं हम सबका मिलजुल कर एक दायित्व हो जाता है। इसका समाधान सरकार निकाले या फिर हम कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो सामाजिक जिम्मेदारी है कंपनियों की, हम उनसे आग्रह करें। हम कैसे भी करें, लेकिन समाधान निकालना पड़ेगा। और ये भी बात समझने वाली है कि दुनिया में इंटरडिपेंडेंस है, हम सब एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं, और नेस्ले इस बात को खूब अच्छी तरह पहचानती है। अगर वो अपना काम करती है, अपने प्रोडक्ट्स जनता तक लेकर जाती है, तो कहीं ना कहीं वो नेस्ले अपनी जिम्मेदारी भी समझती है, और उसी सामाजिक जिम्मेदारी को निभाते हुए, ये पहली बार नहीं है कि नेस्ले ने हमारे लोकसभा क्षेत्र में काम करा, ये लगातार काम कर रहे हैं। और उस कारण से मैं नेस्ले को, उनके जो कॉर्पोरेट अफेयर्स के डायरेक्टर हैं उन्हें, उनके पूरे स्टाफ को, उनके चेयरमैन को, और मेरे साथ में बैठे हिम्मत सिंह जी को धन्यवाद देता हूं कि एक बड़ा दिल रखकर वो अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को निभाते हैं और हमारी मदद भी करते हैं, जनता की मदद भी करते हैं। हिम्मत सिंह जी एक फौजी के बेटे हैं। जनरल भूपेंद्र सिंह जी के साथ में सर्विस करता था, मैं बहुत जूनियर था, तो मुझे लगता है इनका भी एक फौजी का दिल है, और उस जिम्मेदारी को निभाते हुए एक खास से एक लगाव है मेरे साथ कि जयपुर ग्रामीण की जनता के लिए हमेशा सेवा के लिए उपस्थित रहते हैं। मेरा खास इनको भी धन्यवाद। प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार गांव को मजबूत करने के लिए काम करते हैं, और 70% भारत जब गांव में बसता है, गांव मजबूत हो जाएगा तो अपने आप भारत मजबूत हो जाएगा। समझने वाली बात है। उसमें कई सारी योजनाएं हैं, उसमें पानी की भी एक योजना है। एक बहुत बड़ा एक संकल्प प्रधानमंत्री मोदी जी ने लिया है, जिसमें कहा है कि 2024 तक जल जीवन मिशन की योजना से हम घर घर तक नल का पीने का पानी पहुंचाएंगे। एक संकल्प लिया है 2024 तक, ज्यादा लंबा दूर भी नहीं है, और उसके ऊपर जो काम शुरू हो गया है जल जीवन मिशन पे, वो आप देखते भी हैं, अखबार में पढ़ते होंगे। अलग अलग पंचायतों को किसी को 4 करोड़ 5 करोड़ रुपए मिल रहे हैं ताकि नल से पाइप लगकर पानी का समाधान हो सके। हमने उसी प्रधानमंत्री मोदी जी के संकल्प में अपना भी एक छोटा सा योगदान उसमें दिया है कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से आग्रह करके नेस्ले से शुद्ध पीने का जल आपके इस पंचायत में यहाँ पर लगा है। तो एक बार फिर मैं आप सबको भी धन्यवाद देता हूँ इस कार्यक्रम के लिए, नेस्ले को धन्यवाद देता हूँ, और ये उम्मीद भी करता हूँ कि इसका अब सही इस्तेमाल की जो जिम्मेदारी है वो आप सब लोग जो वहाँ उपस्थित हैं, ये अब आपकी जिम्मेदारी होगी कि इसकी मेंटेनेंस हो सके, इसका रख रखाव सही हो सके, इसका इस्तेमाल सही हो सके, और आगे भी जो डेवलपमेंट के काम हैं लगातार होते रहेंगे। आपके चेयरमैन साहिबा यहाँ मौजूद है, हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है। ये एक चेन है जो सबसे निचले स्तर से लेकर ऊपर प्रधानमंत्री तक जुड़ी हुई है। ये जो श्रृंखला है, चेन है, जिसमें हम सब जुड़े हुए हैं, उससे नीचे जो समस्या है गांव में, वो समस्या ऊपर देश की सरकार तक भी पहुंचती है, और जो समाधान है वो ऊपर से नीचे पहुंचे, इसका यकीन भी करा जा सकता है। तो आप सबको एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आग्रह करूंगा कि अपने स्वास्थ्य का ख्याल जरूर रखें, और आपके क्षेत्र में कोई कोरोना केस ना हो, ये संकल्प आप ले सकते हैं। ये 2-4 चीजें जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो बताई हैं, उनको ध्यान में रखते हुए, और स्वास्थ्य सबका सही रहेगा तो हम मजबूती से आगे बढ़ते रहेंगे, और ये समस्या, ये जो समय है जो वो भी निकल जाएगा, और हम मजबूती से आगे बढ़ेंगे। आप सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। नेस्ले को एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथी भाजपा के कार्यकर्ताओं को धन्यवाद, जो पदाधिकारी वहां बैठे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद राठौर साहब। अब मैं अनुरोध करूंगा श्रीमती
कुमावत जी से कि वो 2 शब्द कहें। मैडम बस ये ले लीजिए, तो हाथ भी पकड़ लीजिएगा। बोलो इसमें आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे लोकप्रिय सांसद महोदय श्री राज्यवर्धन सिंह जी राठौड़, पधारे सभी गणमान्य नागरिक बंधु, नेशनल कंपनी के सभी पदाधिकारीगण और समस्त अस्पताल के कर्मचारीगण। यह शुद्ध जल पेयजल की व्यवस्था नेस्ले कंपनी के सौजन्य से जनसाधारण के लिए की गई है। श्री राज्यवर्धन सिंह जी राठौड़ साहब के अनुरोध पर नेस्ले कंपनी में यह प्रोजेक्ट रेनवाल अस्पताल को में लगाया गया है। इसके लिए मैं अस्पताल प्रशासन और समस्त नगर पालिका की जनता की तरफ से श्री राज्यवर्धन सिंह जी राठौड़ साहब और नेस्ले कंपनी को का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सुनील जी। अब मैं अनुरोध करूंगा डॉक्टर साहब को कि डॉक्टर साहब कुछ शब्द कहें। आदरणीय राठौड़ साहब, पैनल पर उपस्थित और हमारे बीच विराजमान नेस्ले कंपनी के पदाधिकारी, सभी ग्राम बंधु, जागरूक बंधु और मेरे स्टाफ के सहयोगी, मैं चिकित्सा प्रशासन की तरफ से सर्वप्रथम नेशनल कंपनी और माननीय राठौड़ साहब का हार्दिक आभार धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। अस्पताल प्रशासन की तरफ से आपको कोटि कोटि अभिनंदन कि आपने हमारे बारे में इतना सोचा और हमारे लिए इतना काम किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे राठौड़ साहब की तो कृपा हम पे शुरू से ही है। मैं आया था राठौड़ साहब का एक बार यहाँ दौरा हुआ था, तो एक मेरी समस्या थी कि हमारे हॉस्पिटल के ऊपर से हाई टेंशन लाइन गुजर रही थी। मैंने सर को थोड़ा सा अनुरोध किया, 10 दिन के अंदर लाइन हट गई और सर ने हॉस्पिटल के लिए 15 लाख के उपकरण भी दिए। और आज इनकी प्रेरणा से नेस्ले कंपनी ने यहाँ ये 15 लाख का आरओ प्लांट लगाया, जिसके लिए मैं कंपनी व सर का कोटि कोटि अभिनंदन करता हूँ। और सर आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अभी आपने कहा कि मेंटेनेंस, मैं और मेरी टीम इस प्रोजेक्ट को बिल्कुल मेंटेन करेंगे। और इसमें जैसे पिरामल के तरुण जी का भी बहुत सहयोग है और इनसे आगे सहयोग मिलेंगे, समन्वय बना के काम करेंगे और जनता को सुविधा भी देंगे। सर साथ में मैं कोरोना पे आप इतना जागरूक है तो थोड़ा सा आपको निवेदन करना चाहूंगा कि मेरी टीम लगभग 45 सदस्य हैं हमारी टीम में। हम दिन रात लगे हुए हैं और रेनवाल से कोरोना को हटा के छोड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए सर। तो मैं आप सभी का एक बार हार्दिक आभार और धन्यवाद। थैंक यू सर। धन्यवाद डॉक्टर साहब, धन्यवाद, थैंक यू। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा गौरी शंकर जी से वो 2 शब्द कहें। जी, इस प्लांट के वर्चुअल कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह में लोकप्रिय पूर्व केंद्रीय मंत्री और हमारे जयपुर ग्रामीण के सांसद आदरणीय राज्यवर्धन सिंह जी राठौड़ और उपस्थित यहाँ सभी गणमान्य नागरिक बंधु, नेस्ले कंपनी के डायरेक्टर महोदय डॉक्टर आरपी सिपर साहब, मैं सबसे पहले तो आदरणीय राठौड़ साहब का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि आपने अपने जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र में अगर सबसे ज्यादा काम करवाए हैं तो मैं मानता हूं हमारी नगर पालिका किशनगढ़ रेनवाल में आपका बहुत बड़ा आशीर्वाद रहा है, जिसका अभी आप सभी देख रहे हैं कि 250 लीटर के एक उच्च कोटि के स्तर का जो आरओ प्लांट नेस्ले कंपनी के सहयोग के द्वारा और आपकी प्रेरणा और आशीर्वाद से आज एक इसका वर्चुअल विधिवत उद्घाटन होने जा रहा है। इससे पहले भी आदरणीय सांसद साहब ने हमारे रेनवाल नगर पालिका के विकास के लिए अभी जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि रेनवाल मतलब फुलेरा तहसील का सबसे बड़ा नगर पालिका क्षेत्र है, सबसे बड़ा हॉस्पिटल है और यहाँ वर्षों से ये एक हाई टेंशन लाइन
हॉस्पिटल के ऊपर से गुजर रही थी। डॉक्टर साहब और हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आपसे आग्रह किया और आपने उस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए मात्र 10 दिन के अंदर उस हाई टेंशन लाइन को हॉस्पिटल से हटवाया, जो बहुत बड़ा एक खतरा पैदा था। मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। साथ ही हॉस्पिटल के विकास के लिए आपने ऑपरेशन थिएटर यहाँ सुचारू रूप से चालू नहीं था। ऑपरेशन थिएटर के उपकरणों के लिए आपने 15 लाख रुपए यहाँ प्रदान किए। मैं आपका बहुत हार्दिक धन्यवाद करना चाहता हूँ। हमारे रेलवे स्टेशन के विकास के लिए आप लोगों ने पहले भी रेलवे स्टेशन की दशा देखी थी और आज कोई 5 साल बाद रेनवाल रेलवे स्टेशन पे कोई नया आदमी आता है तो एक बार तो आश्चर्यचकित हो जाता है कि मैं कहीं गलत जगह तो नहीं उतर गया। आपने 3.5 करोड़ रुपए की लागत से रेनवाल रेलवे स्टेशन की जो काया पलट की है, मैं रेनवाल की जनता की ओर से आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये विकास की कड़ी यही नहीं रुकती है। आपके आशीर्वाद से आपने रेनवाल में एक बड़ा खेल स्टेडियम बनाया है जो करीब 70 लाख रुपए की लागत से बना है। उस पे नौजवान मेरे युवा साथी अपनी प्रैक्टिस करते हैं, विभिन्न प्रकार के गेम खेलते हैं और मुझे जानकारी मिली है कि उस खेल ग्राउंड बनने के बाद में वो प्रदेश स्तर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक उन्होंने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन आपके आशीर्वाद से किया है। इसके साथ रेनवाल को बड़ी ओपन जिम की सौगात दी है। मैं आपका कोटि कोटि इन सभी विकास कार्यों के लिए आपका आभार और धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूं और निवेदन करना चाहता हूं का आपका आशीर्वाद इसी प्रकार रेनवाल नगर पालिका पे और हम सब पे बना रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद गौरीशंकर जी। अब इस कार्यक्रम के समापन से पहले मैं धन्यवाद एक बार करना चाहूंगा सभी अतिथिगणों का। मुख्य अतिथि श्री राज्यवर्धन सिंह राठौर जी, चेयरमैन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन श्रीमती सुमन कुमावत जी, टेक्निकल इंचार्ज CSC श्री राजेंद्र सिद्धू साहब, गौरीशंकर जी, हमारे डायरेक्टर कॉर्पोरेट अफेयर्स श्री संजय खजूरिया जी, एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट कॉर्पोरेट अफेयर्स श्री मोहम्मद सिंह जी, कॉर्पोरेट अफेयर्स से कादमानी जी, अजय जी और सब दल से तरुण जी। धन्यवाद। धन्यवाद, आपने टाइम निकाला और इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। धन्यवाद। थैंक यू। देवेश, नहीं अब तो हाँ कराने के लिए आप सर ने हमारे नगर में और हमारे हॉस्पिटल में सुविधा उपलब्ध कराई। आपको भी मैं बता देता हूँ आप लोगों को इसके बारे में। हाँ, ये जो प्लांट है ना, हाँ, ये सबसे सही व्यक्ति है इसको पूरा डिटेल करने के लिए। ये प्लांट मतलब आपको बिल्कुल शुद्ध गुणवत्ता का पानी और ये ATM से मिलेगा। तो ये यहाँ पर और इसमें एक जरूर अपने को ध्यान रखना है कि ये पानी फिल्टर होने में वेस्टेज बहुत होता है ना। इस पानी का इस्तेमाल जो है वो हम तरीके से मतलब उसका पीने के लिए ही उपयोग करें, कोई मनुष्यों के लिए करें फिलहाल, ठीक है, क्योंकि बहुत अच्छी चीज है, बहुत रिलायबल है, ठीक है, और गुणवत्ता में कहीं कोई कमी नहीं आएगी। तो हम लोग इस चीज का बेहतर तरीके से इस्तेमाल करें, यही एक रिक्वेस्ट है। इसका मेंटेनेंस जो है ये अभी कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो करेंगे। नहीं, लगभग 1 महीने में एक बार सर्विस होगी यहाँ पे। ये बड़ी मशीन है तो 1 महीने में एक बार इसकी सर्विस होती है। तो रेगुलर सर्विस होती है, इसमें टैंक क्लीनिंग भी आता है, प्रॉपर क्लीनिंग, इसके कार्टेज जो फिल्टर कंज्यूमेबल्स होते हैं वो चेंज होते हैं। मैक्सिमम टाइम 5 साल बैकअप सपोर्ट 5 साल, वो भी 5 साल तो नहीं है, लेकिन हाँ वो कंटिन्यू रहेगा ना, कंटिन्यू नहीं, जब तक आपका सपोर्ट रखिए। ये मशीन लोकल मिस्त्री नहीं चला सकते, हमारा सपोर्ट रहेगा पूरा। आप इनके नंबर वगैरह देखो सर, एक चीज और बताना चाहूंगा। शुरू में जब ये प्लांट लगा रहे थे
तो उन्होंने कहा यार ये एटीएम वाला सिस्टम है, इसकी कुछ मैं कहा भाई देखो अगर एटीएम वाला सिस्टम है तो फिर मैं नहीं लगा, पैसे वाला मतलब तो मेरे जब सुविधा लगा रहे हो तो फ्री ऑफ कॉस्ट लगाओ, तो मजा ही कुछ होता है। नहीं तो लोग कहेंगे कि पैसे को नहीं, ₹1 ही पर लेकिन वो ठीक है लगा तो मेरा आग्रह इन्होंने माना और वो वाला सिस्टम हटाई दिया, डिलीट कर दिया। चलो बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। इन्वेस्टमेंट भी है तो या तो आप आप भी कर सकते ठीक है ना, बंद कर देना इसको।